اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام۔ وزیر اعظم عمران خان نے منڈی اور پرچون قیمتوں میں غیر منطقی فرق ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ نتائج سامنے آنے چاہیے کہ عوام کو ریلیف ملا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ ماضی میں چھوٹی صنعتوں کو نظر انداز کیا گیا۔ حکومتی صنعتی ترقی کے لیے 436 ارب روپے فراہم کر رہی ہے۔ چھوٹی صنعتوں کی ترقی کی پالیسی کو جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان۔ پاکستان کی سرحدیں محفوظ، کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی دفاع اور کشمیر سے متعلق پارلیمانی کمیٹیز کے ارکان سے گفتگو۔ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان کی ملاقات۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 13 ستمبر کو بلانے کا فیصلہ۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی خطاب کریں گے۔ پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر حقیقی فلاحی ریاست بنانا ہوگا۔ بینکاری کے شعبے میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سرمایہ دار طبقے کے ساتھ عام آدمی کے مفاد کو بھی ترجیح دینا ہوگی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا کراچی میں اسلامی بینکاری کانفرنس سے خطاب۔ کابل میں امریکی ڈرون حملے پر طالبان کا شدید رد عمل۔ ہماری اجازت کے بغیر افغان سرزمین پر کارروائی جارحیت ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد۔ حملے میں بے گناہ لوگوں کی ہلاکت کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پینٹاگون۔ امریکی اینٹی میزائل سسٹم نے کابل ایئرپورٹ کی طرف داغے گئے 5 راکٹ فضا میں تباہ کر دیے۔ طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کی قندھار میں اہم ملاقاتیں۔ افغانستان کے معاملے پر سلامتی کونسل اور G7 کے اہم اجلاس آج ہو رہے ہیں۔ طالبان کے عروج سے بھارت کی انتہا پسند ہندتوا حکومت شدید جھنجھلاہٹ کا شکار۔ افغانستان میں انڈین سفارتکاری شرمناک انجام کو پہنچ چکی۔ اب دور دور تک بحالی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ بھارت کو خطے کے بڑے کھیل سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا۔ امریکی تھنک ٹینک اور دلی یونیورسٹی کے پروفیسر کا تجزیہ۔ پاکستان کا جذبہ خیر سگالی۔ عالمی ادارہ خوراک کی درخواست پر PIA کا خصوصی طیارہ خوراک اور ادویات لے کر مزار شریف پہنچ گیا۔ 12.5 ٹن سامان میں ٹراما اور ہنگامی طبی کٹس شامل۔ شہباز شریف نے مزار قائد پر مضحکہ خیز پریس کانفرنس کی۔ اسلام آباد میں جلسہ کرنے کے بجائے اپنے بھائی کو لندن سے بلائیں۔ مضبوط کیسز کی بدولت لگتا نہیں کہ اپوزیشن لیڈر زیادہ دیر جلسوں سے خطاب کر سکیں گے۔ مسلم لیگ نون میں پارٹی صدارت کے لیے ٹاس ہوتا ہے۔ اس مرتبہ شہباز شریف صدر ہیں، اگلی بار مریم نواز اور پھر شاہد خاقان عباسی کی باری ہوگی۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین۔ سندھ میں 13 سال سے مسلسل اندھیر نگری چوپٹ راج۔ گرین لائن K4 سرکل ریلوے سمیت دیگر منصوبے وفاق مکمل کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو اور ان کی حکومت کرپشن کے ورلڈ ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ پانی کی غیر منصفانہ تقسیم، ٹینکر مافیا، لینڈ مافیا پیپلز پارٹی حکومت کی پہچان بن گئے ہیں۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کا ٹویٹ۔ مقبوضہ کشمیر میں 32 سال کے دوران 8000 نوجوان دوران حراست لاپتہ۔ بھارتی فوج نے بے خوف ہو کر لوگوں کا قتل عام کیا۔ حریت رہنماؤں کا عالمی برادری سے لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ۔ قابض فوج کی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع پونچھ میں ایک کشمیری نوجوان شہید۔
मुल्क में कोरोना से मजीद 66 अफराद जान की बाजी हार गए। 3800 नए केस रिपोर्ट। अमवात की मजमूई तादाद 25,670 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 6.7% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 24 घंटों में 56,269 टेस्ट किए गए। दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 45,17,000 से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज एनसीओसी ने 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत दे दी। कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 3 वनडे जबकि कजाफी स्टेडियम लाहौर में 5 T20 मैचेस सितंबर और अक्टूबर में शेड्यूल। मेहमान टीम 11 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। और टोक्यो पैरालंपिक्स के मुकाबले जारी। मेडल्स टेबल पर चीन सर फहरिस्त। बरतानिया दूसरे, अमरीका तीसरे नंबर पर मौजूद। खवातीन की 200 मीटर दौड़ में चीन की शियाओ चाओ का नया आलमी रिकॉर्ड। स्विमिंग के 100 मीटर मुकाबले में जापान के यामागुची ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में रशियन ओलंपिक कमेटी के दिमित्री चेनियव ने नया आलमी रिकॉर्ड कायम करके तलाई तमगा अपने नाम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं नाजिया खान और मैं हूं शाहिद नसीम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जिंदगी के रिश्ते एहसास से बनते हैं। इन्हीं रिश्तों की आबियारी के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान का कामयाब तरीन ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर आपके प्यारों की जिंदगी में उम्मीद और सेहत के लिए पुरअज़्म एक ही छत तले पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मुख्तलिफ तिब्बी शोबों के माहिरीन की एक्सपीरियंस टीम लिवर, किडनी, बोन मैरो और कॉर्निया ट्रांसप्लांट को कामयाबी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक यकीनी बनाती है। मरीज और डोनर्स की मुकम्मल केयर और तहफ़्फ़ुज़। इट्स ऑल हियर इन पाकिस्तान। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। उम्मीद और जिंदगी के सफर में आपके हमकदम। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम, खुसूसन मंडी और परचून में गैर मंतकी फ़र्क को ख़त्म करने के हवाले से हर मुमकिना इंतज़ामी इक़दाम यकीनी बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में अशियाई ज़रूरिया की तलब व रसद और उनकी कीमतों के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महज इंतज़ामी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नाकाफ़ी है। इंतज़ामी इक़दामात के नताइज सामने आने चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मैसर आए। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि चीनी और गंदम की मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मुफस्सिल मनसूबाबंदी और बरवक्त इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क भर में आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाली बुनियादी अशियाई ज़रूरिया की कीमतों, खुसूसन मंडी और परचून के निर्खों का तकाबुली जायज़ा पेश किया गया। मुल्क में चीनी और गंदम की मौजूदा ज़खायर और मुस्तकबिल की ज़रूरियात को पूरा करने के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दामात पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। खुर्दनी तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी लाने के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात से भी आगाह किया गया।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सूबा पंजाब में कीमतों के हवाले से किए जाने वाले इंतजामी इकदामात से आगाह किया। इजलास को बताया गया कि कीमतों के इस्तेहकाम के ज़िम्मे में अपनी जिम्मेदारियों में सुस्ती का मुजाहरा करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब तक 7 असिस्टेंट कमिश्नर्स, मार्केट कमेटीज़ के 2 सेक्रेटरीज को मुअत्तल जबकि 2 डिप्टी कमिश्नर्स को वार्निंग दी जा चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि खुर्दी तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ मामलात हतमी मराहिल में हैं, जिसके नतीजे में खुर्दी तेल की कीमतों में 10 से 15 रुपए फ़ी किलो कमी मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने छोटी सनतों को नज़रअंदाज किया, हमारी पूरी तवज्जो छोटी सनतों को सहूलियात देने पर मरकूज है। इस्लामाबाद में छोटे और दरमियाने कारोबार के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि ईज़ ऑफ बिजनेस पॉलिसी के तहत छोटे कारोबार करने वालों को मराहत और आसानियाँ फराहम की जाएँ। उन्होंने कहा कि SME मुल्क की मईशत में खुसूसी अहमियत की हामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि मुजव्वज़ा SME पॉलिसी को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जाए। इजलास को ब्रीफिंग में सेक्रेटरी सनत व पैदावार डिवीज़न ने बताया कि छोटे और दरमियाने कारोबार पाकिस्तान की कुल GDP का 40% है। इजलास को मुजव्वज़ा SME पॉलिसी के खदोखाल के हवाले से भी आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि SME के फ़रोग के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी वफाकी काबीना पहले से दे चुकी है और इस शोबे को टैक्स की मद में खातिर खा मराद दी जा रही हैं। इजलास को ये भी बताया गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे से मुंसलिक कारोबार को खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जबकि स्टेट बैंक की ज़ेर निगरानी छोटी और दरमियानी सनतों को कर्जे फराहम किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मगरबी सरहद की मैनेजमेंट के हवाले से उठाए गए बरवक्त इकदामात की वजह से चैलेंजेस के बावजूद आज पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं और हम किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। उन्होंने ये बात जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी के दौरे पर आए हुए उमूर कश्मीर के लिए पार्लिमानी कमेटी और सेनेट और कौमी असम्बली की डिफेंस कमेटीज़ के अरकान पर मुश्तमिल वफ्द से बातचीत करते हुए कही। आर्मी चीफ ने खित्ते में रवाबित के फ़रोग के समारात के बारे में बातचीत करते हुए अफगानिस्तान में अमन की बहाली और खित्ते की पायदार तरक्की की अहमियत को उजागर किया। बड़ी फ़ौज के सरबराह ने कश्मीरी अवाम और कश्मीर कॉज के हवाले से पाक फ़ौज के अज़्म और ताउन का यादा किया। उन्होंने इस बात को एक बार फिर दोहराया कि दुनिया को ये बात समझ लेनी चाहिए कि मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बगैर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की बेमिसाल कामयाबियां आवाम की ताईद और मदद से मुमकिन हो सकी और इसी वजह से मुल्क में हालात मामूल पर आए। वफ़द ने जनरल कमर जावेद बाजवा से तवील दौरानिया पर मुश्तमिल बातचीत की। गुफ्तगू में इत्तेफाक किया गया कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का खात्मा मरबूत और कौमी सोच से ही मुमकिन है। वफ़द को सलामती और सरहदों की सूरत हाल समेत अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की कोशिशों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। अपने वतन पर फख्र करने के लिए हमारे पास कितना कुछ है, जैसे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान के लीडिंग और कामयाब तरीन लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर में पिछले 10 सालों में 1000 से ज्यादा लिवर ट्रांसप्लांट्स कामयाबी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किए जा चुके हैं। एक ही छत तले पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मुख्तलिफ तिब्बी शोबों के माहिरीन की एक्सपीरियंस टीम मरीज और डोनर की मुकम्मल केयर और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती है। अब लिवर ट्रांसप्लांट के लिए किसी गैर मुल्क में क्यों जाए? इट्स ऑल हियर इन पाकिस्तान। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, उम्मीद और जिंदगी के सफर में आपके हमकदम। नाज़रीन, अमरीकी एंटी मिसाइल सिस्टम ने काबुल एयरपोर्ट की तरफ दागे गए 5 रॉकेट फ़ज़ा में तबाह कर दिए हैं, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये बात तर्जुमान व्हाइट हाउस ने एक बयान में बताई, जबकि दाइश खरासान ने दावा किया है कि ये रॉकेट हमले इसके जंगजुओं ने किए थे। दूसरी जानिब तालिबान ने गुज़श्ता रोज़ के ड्रोन हमले में शहरियों की हलाकत की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि अमेरिका की जानिब से अफगान सरजमीन पर हमला गैर कानूनी है, जबकि पेंटागन ने यह कहा है कि इस हमले में बेगुनाह लोगों की हलाकत की तहकीकात की जा रही हैं।
तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि काबुल में इतवार के रोज़ अमरीकी ड्रोन हमला गैर कानूनी कार्रवाई थी। गैर सरजमीन पर किसी दूसरे के मुल्क में बगैर किसी इत्तला के हमले करना गैर कानूनी और गैर इखलाकी है और इसका कोई जवाब नहीं बनता। चीन के सरकारी टेलीविजन CGTN के साथ इंटरव्यू में तालिबान तर्जुमान ने कहा कि अगर अफगानिस्तान में किसी भी हमले का खतरा था तो अमेरिका को उसकी इत्तला सबसे पहले हमें दी जानी चाहिए थी। आज खुद कार्रवाई जारियत है। वाशिंगटन में अमेरिकी सेंट्रल कमान के एक बयान में कहा गया है कि हमें इस बात का इल्म है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी की वजह से ताकतवर धमाके हुए जिसकी वजह से इंसानी जानें ज़ाया हुई। अफगानिस्तान के मामले पर सलामती काउंसिल और G7 के अहम इजलास आज हो रहे हैं और इसी असना में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमिश्नर ने बैनुल अक़वामी बरादरी से अफगानिस्तान की इमदाद में इजाफे की अपील की है। नाज़रीन, तालिबान के अमीर मुल्ला हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा गुज़श्ता रोज़ नामालूम मुकाम से कंधार पहुँचे, जहाँ उन्होंने मकामी कबायली रहनुमाओं से मुलाकात की। मुल्ला हिब्बतुल्लाह काबुल जाएंगे, जहाँ वो उलमा इकराम, तालिबान के अहदेदारों और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। तवक्को है कि उनके काबुल पहुँचने के बाद नई हुकूमत की तश्कील के लिए मुज़ाकरात में तेज़ी आएगी। दूसरी तरफ तालिबान ने लूटा हुआ और गैर कानूनी असलहा शहरियों से वापस लेना शुरू कर दिया है। जमा शुदा असलहे को एक जगह जमा किया जा रहा है। अफगानिस्तान में शुमाली इत्तेहाद की जानिब से मुज़ाहिमत के बाद तालिबान ने वादी पंजशीर में पेशकदमी की है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ वादी के बाहर तालिबान और बागी मिलिशिया के दरमियान झड़पें हुई। वादी के मकीनों का कहना है कि तालिबान ने टेलीफोन और इंटरनेट के राबते मुनक़ता कर दिए हैं। इसी दौरान फ़िरीक़ैन के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। तालिबान ने पंजशीर के मकामी रहनुमाओं को नई हुकूमत में शामिल होने की दावत दी है, लेकिन ताहाल बातचीत में कोई पेशरफ़्त नहीं हो सकी है। आलमी इदारा सेहत की जानिब से तिब्बी साजो सामान लेकर PIA का कार्गो तैयार अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ पहुँच गया। काबुल में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने एक ट्वीट में कहा कि तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद ये तिब्बी सामान की अफगानिस्तान में पहली फ़्लाइट है जिसके लिए इंसानी बुनियादों पर हवाई राब्ता कायम किया गया है। WHO ने एक बयान में कहा कि तिब्बी सामान भिजवाने का मनसूबा हुकूमत पाकिस्तान का था, जिसके ज़रिए PIA की 3 फ़्लाइट्स भिजवाई जाएंगी। बयान के मुताबिक तैयारे में 12.5 टन सामान था, जिसमें ट्रॉमा किट्स और हंगामी तिब्बी किट्स भी शामिल थीं, जो 2 लाख लोगों की तिब्बी सहूलियात के लिए काफ़ी हैं। इस सामान से 3500 जराही अमल हो सकेंगे और सदमे के 6500 मरीजों का इलाज हो सकेगा। ये सामान फौरी तौर पर अफगानिस्तान के 29 अजला के 40 सेहत के मराकज़ को भेजा जाएगा। WHO के इलाकाई सरबराह डॉक्टर अहमद अलमंधारी ने सामान पहुँचाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान, PIA और पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से बरवक्त इक़दाम अफगानिस्तान में इंसानी जानें बचाने में मुआविन साबित होगा। अफगानिस्तान में तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने से सबसे बड़ा धचका भारत को लगा है और बदतरीन सिफारती शिकस्त और रसवाई के बाद इंतहा पसंद हिंदुत्व हुकूमत शदीद झंझलाहट का शिकार है। अमेरिकी थिंक टैंक विल्सन सेंटर के एशिया प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर माइकल कोगलमैन ने कहा है कि भारत, जो हमेशा मगरिब नवाज हुकूमतों का सबसे करीबी शराकतदार रहा है, अब अफगानिस्तान के हवाले से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाला मुल्क बन चुका है। नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हिपिमोन जैकब ने ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया और करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के मामले में भारत को खेल से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है। अल जज़ीरा TV से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में भारतीय सिफारतकारी शर्मनाक अंजाम को पहुंच चुकी है और अब दूर दूर तक इसकी बहाली के आसार नजर नहीं आते। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का कहना है कि अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ने की गलती अगर दोहराई गई तो बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। हम खित्ते और बैनुल अक़वामी ताकतों के साथ मिलकर मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए कोशां हैं। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान 35 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है। हमारी मईशत मज़ीद बोझ नहीं उठा सकती। अफगानिस्तान की पेचीदा सूरत हाल के बायस मखलूत हुकूमत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में बदअमनी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है। इस वक्त मुहाजिरीन का कोई बहरान नहीं है। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से जामे हिकमत अमली वज़ा की है, माजी की तरह सूरत हाल पैदा नहीं होगी। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से काबुल से गैर मुल्कियों और आलमी इदारों में काम करने वालों के इनखला में मदद की। PIA के जरिए 4500 अफराद को काबुल से निकाला गया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि शरई बैंकारी निज़ाम इस्लामी मौशरे के क़याम के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकता है।
कराची में इस्लामी बैंकिंग से मुतालिक चौथी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर हकीकी फलाही रियासत बनाने के लिए अवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना होगी। तफसीलात के लिए कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बराबरी के असूलों पर मबनी इस्लामी बैंकारी का निज़ाम दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर रहा है। इस निज़ाम में सरमायादार के मुफाद के साथ साथ आम आदमी के मुफाद को भी तरजीह दी जाती है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा सलाहियत और काबिलियत की बिना पर नौजवानों को कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जे फराम किए जा रहे हैं। ये इस्लाम की रूह से, इस्लाम के हवाले से बिल्कुल एक क्रिमिनल कैफियत है कि कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल हो जाए। लिहाजा मुनाफे की कोई ना कोई लेवल का इस्तेमाल होना चाहिए। कैपिटलिज्म ने एक चीज़ को प्रमोट किया, वो है ग्रीड, नदीदापन, जमा करना है, और माशरा चाहे जहाँ जाए ये वेल्थ एक्यूमुलेशन। तो इसको एक अच्छा इस्लामी माशरा इस एक्यूमुलेशन को फाइट करता है। कामयाब जवान प्रोग्राम और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे शुरू हुए हैं जिसके अंदर पोटेंशियल पर, उसके इल्म की बुनियाद पर, फिजिबिलिटी की बुनियाद पर लोन दिए जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि इस्लामी फाइनेंसिंग का निज़ाम मुल्की व गैर मुल्की सतह पर मकबूलियत हासिल करता जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा कि स्टेट बैंक ने 2025 तक मुल्क में 30% इस्लामी बैंकारी के निज़ाम को यकीनी बनाने का हदफ मुकर्रर किया है। वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर इशरत हुसैन ने कहा कि इस्लामी बैंकारी का निज़ाम आम बैंकारी के निज़ाम से मजीद बेहतर और महफूज है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज स्टेट बैंक के साथ मिलकर मुल्क में इस्लामी बैंकारी के फरोग और उसमें सरमायाकारी के लिए काम कर रहा है। तकरीब से दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए मौजूदा दौर में इस्लामी बैंकारी के निज़ाम की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि ब्रांड अफराद के किरदार से बनता है और पाकिस्तान के तशख्खुस को बेहतर बनाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। कराची में ब्रांड ऑफ द ईयर 2020 की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कमी और कोताहियों की निशानदही ज़रूरी है, मगर हर वक्त बुरा भला कहने से कौमी तशख्खुस मुतासिर होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐब छुपाए जाएं, ऐबों को ठीक किया जाए, मगर कभी कभी ऐसी कैफियत आती है कि ब्रांड पाकिस्तान सिर्फ जराइम नज़र आएँ उसके ऊपर, और ऐसी कैफियतें नज़र आएँ। आजकल मैं ज़्यादा ही हसास हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की इतनी अच्छी ब्रांड है। कोविड में आपने एक ब्रांड बनाई, यानी आपका पड़ोसी मुल्क, एक ही जोग्राफिया, एक ही नस्ल, एक ही बीमारी, एक ही वेदर, आपने कंपैशन की बुनियाद पर, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बिसात बिछाई इमरान खान साहब की, उसके ऊपर डेटा की बुनियाद पर सही फैसले किए, मसाजिद खुली रखी, मीडिया ने, सब लोगों ने मिलकर काम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में जराइम की रोकथाम के हवाले से यूनिवर्सल एमरजेंसी हेल्पलाइन से मुतालिक इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत जराइम की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन का इजरा करेगी। उन्होंने वज़ारत दाखिला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन के मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि वो मुल्क में जराइम पर काबू पाने के लिए जल्द अज जल्द सर्विस के आगाज़ में तमाम रुकावटों को दूर करें। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि इस हेल्पलाइन के इजरा से मुल्क में अमन व सलामती को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि जराइम के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि बैन सूबाई राबतों समेत तमाम ज़रूरी काम मुकम्मल हो चुका है और अक्टूबर 2021 के पहले हफ्ते तक हेल्पलाइन का बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नए डैमों की तामीर से पानी और तवानाई की ज़रूरियात पूरी हो सकेंगी, आबी ज़खायर से सस्ती पन बिजली की फराहमी भी मुमकिन हो सकेगी। उन्होंने ये बात चेयरमैन वापडा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन से गुफ्तगू करते हुए कही। डैमों की तामीर की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तामीराती काम को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन वापडा ने वज़ीर आज़म को डैमों की दहाई के तहत पाकिस्तान में जारी बड़े डैमों की तामीर पर पेशरफ से आगाह किया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर आज़म की मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में फैसला हुआ है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 13 सितंबर को बुलाया जाएगा। मुलाकात में वफाकी वज़रा असद उमर और डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने भी शिरकत की।
پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت خطاب کریں گے۔ ملاقات میں قانون سازی اور نئے پارلیمانی سال کے کیلنڈر سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ مؤثر قانون سازی کے ذریعے ملک کو درپیش چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چوتھے پارلیمانی سال میں زیر التوا قوانین کی منظوری اور عوامی فلاح و بہبود سے متعلق قوانین ترجیحی بنیادوں پر منظوری کے لیے پیش کیے جائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ تیسرے پارلیمانی سال میں عوامی فلاح و بہبود سے متعلق متعدد بلز منظور کیے گئے اور بجٹ اور عوامی اہمیت کے حامل امور پر سیر حاصل بحث کی گئی۔ وزیراعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ نئے پارلیمانی سال کا کیلنڈر تیار کر لیا گیا ہے، جسے ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات چوہدری فواد حسین کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے مزار قائد پر مسکہ خیز پریس کانفرنس کی۔ ان کو چاہیے کہ وہ اسلام آباد میں اجتماع کرنے کی بجائے اپنے بھائی کو لندن سے بلائیں۔ شہباز شریف کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف مضبوط کیسز کی بدولت لگتا نہیں کہ وہ زیادہ دیر جلسوں سے خطاب کر سکیں گے۔ شہباز شریف صاحب اس قسم کے ایک ہنسی مذاق کے موڈ میں ہوں تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے اوپر نہ جایا کریں۔ آپ لاکھوں لوگوں کو چھوڑیں، صرف اپنے بھائی صاحب کو اپنے یو کے سے لندن سے واپس بلائیں اور ان سے کہیں کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کریں۔ اور رات کو جس طریقے سے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے ٹسوے بھرے پاکستان کے لوگوں کے اوپر کہ مہنگائی ہو گئی ہے، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، یہ مہنگائی ہے یا جو بھی حالات ہیں وہ پاکستان کے عوام نے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ لندن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کی اتنی پرواہ جتنی ہے اتنا ہمیں بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ شہباز شریف صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ فی الحال سیاست کے اوپر اپنی توجہ کم رکھیں۔ ویسے بھی ان کی پارٹی میں ٹاس ہو رہا ہوتا ہے، اس مہینے وہ صدر ہیں، اگلے مہینے مریم نواز صدر ہوں گی، پھر شاہد خاقان عباسی صدر ہوں گے۔ پہلے اپنی پارٹی کی اندرونی سیاست کے اوپر توجہ دیں، اپنے وکیلوں کے ساتھ وقت گزاریں، اور پھر اگر وہ بچا گئے تو پھر انشاءاللہ ملکی سیاست پہ بھی ان کی بات کو سنا جائے گا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا کراچی میں جلسہ فلاپ شو ثابت ہوا۔ کراچی کے عوام نے مسترد شدہ جماعتوں کے ٹولے کو ان کی حیثیت یاد دلا دی۔ نوشہرہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا کہ عوام باشعور ہیں، اپوزیشن کے جھانسے میں نہیں آئیں گے اور ان کے جلسے اسی طرح فلاپ ہوتے رہیں گے۔ عوام کو معلوم ہے کہ ان کے یہ جلسے جلوس صرف اپنے ذاتی مفاد اور اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے جلسوں سے کبھی عوام کے ووٹوں سے منتخب شدہ حکومتیں ختم نہیں ہوتی۔ اپوزیشن اپنی سوچ میں تبدیلی لا کر شارٹ کٹ کے بجائے 2023 کے انتخابات کی تیاری کرے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی صدارت میں وزارت خارجہ میں اقتصادی سفارتکاری کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ مختلف ملکوں میں تعینات پاکستانی سفیروں نے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی توجہ جغرافیائی اقتصادی ترجیحات پر مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مجھے توقع ہے کہ اہداف کے حصول کے لیے اقتصادی سفارتکاری کو مؤثر انداز میں بروئے کار لائیں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن سے وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ ہمارے تجارتی اور اقتصادی روابط میں بہت تیزی آنے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اجلاس میں شریک سفیروں نے اقتصادی سفارتکاری کے تحت وزارت خارجہ کی جانب سے دیے گئے اہداف کی تکمیل کے لیے کاوشوں سے متعلق وزیر خارجہ کو آگاہ کیا۔ اہداف میں تجارت، سیاحت، سرمایہ کاری کا فروغ اور پاکستان کی برآمدات میں اضافے کے لیے نئی منڈیوں تک رسائی شامل ہے۔ وزارت خارجہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کی روشنی میں اقتصادی سفارتکاری کے طے کردہ اہداف کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی سیاست کا محور بننے جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف کسی بھی دہشت گرد طاقت کو استعمال کر سکتا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ افغانستان سے تمام پاکستانیوں کا انخلا مکمل کیا جا چکا ہے۔ افغانستان کا امن و استحکام ہمارا امن و استحکام ہے۔ پاکستان اپنی قومی سلامتی کی ذمہ داری کے ساتھ بین الاقوامی ذمہ داری بھی پوری کرے گا۔ ہمیں یہ یقین دلایا گیا ہے اور ہمیں پوری توقع ہے طالبان کی حکومت سے کہ وہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور الحمدللہ بارڈر پر پاکستان کی فوج موجود ہے، ایک ایک انچ پر پاکستان کی عظیم افواج موجود ہیں اور اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں۔ ہمارا دشمن ہندوستان کسی بھی دہشت گرد طاقت کو استعمال کر سکتا ہے۔ جو کچھ انڈیا کے الیکٹرانک میڈیا میں پاکستان کے خلاف پروگرام ہو رہے ہیں وہ انتہائی
बेहुदा, भोंडे और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती की जिम्मेदारी भी पूरी करेगा, बैनुल-अक़वामी तकाज़े हैं उनको भी पूरा करेगा, लेकिन दुनिया ये ना भूले कि हमारी छाती पे 80,000 लोगों की शहादत है। मुल्क की सियासत पर बात करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। वो पहले भी इस्लामाबाद आए थे लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। शेख रशीद अहमद ने कहा कि अपोजिशन को कहना चाहता हूँ कि आप पछताएंगे। अपोजिशन को पाकिस्तान के मामलात से निपटने का कोई शऊर नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुल्की बरामदात बढ़ाने के इक़दामात के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशियात फ़ारूक हबीब ने अपने ट्वीट में कहा कि रवां साल जुलाई में बरामदात 19.7% इजाफे के साथ 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि बरामदात में इजाफा पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का बायस बनता है। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। जिंदगी के रिश्ते एहसास से बनते हैं। इन्हीं रिश्तों की आबियारी के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान का कामयाब तरीन ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर आपके प्यारों की जिंदगी में उम्मीद और सेहत के लिए पुरअज़्म एक ही छत तले पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मुख्तलिफ तिब्बी शोबों के माहिरीन की एक्सपीरियंस टीम लिवर, किडनी, बोन मैरो और कॉर्निया ट्रांसप्लांट को कामयाबी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक यकीनी बनाती है। मरीज और डोनर्स की मुकम्मल केयर और तहफ़्फ़ुज़। इट्स ऑल हियर इन पाकिस्तान। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। उम्मीद और जिंदगी के सफर में आपके हमकदम। वेलकम बैक नाजरीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि जर्मनी के वजीर खारजा हाइको मैस आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार अहमद के मुताबिक दौरे में दोनों मुल्कों के वज़ीर खारजा के माबैन सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती, सलामती और दिफा, सकाफत और तालीमी शुबों में ताउन से मुतल्लिक बातचीत मुतवक्के है। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अफगान सूरत हाल में पेशरफ्त पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र और इससे मुतल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह करेंगे। दौरे में जर्मन वज़ीर खारजा आला सतह मुलाकातें भी करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हक़ राय दही देने और पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तें मुख्तस करने का मामला पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। मज़ीद तफसील हुमा इकबाल से। पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल ने इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें उनका मुतालबा